Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, our today's topic is graphics in QB64. So let's start the chapter. Learning objectives. Using graphics in QB64, screen statement, color statement, drawing lines diagonally, using pset command, line statement, circle statement, paint statement. QB64 programs can not only display text and alphanumeric output, but they can also display colorful figures and graphics using the graphic commands. Different types of figures and patterns can be drawn in various styles as well as colors. बच्चों QB64 जो प्रोग्राम है वो आपके खाली टेक्स्ट को या फिर आपके नंबर्स को ही नहीं दर्शाता, वो बल्कि आपके कलरफुल फिगर्स एंड ग्राफिक को भी दर्शाने में हेल्प करता है. ठीक है, अगर आप ग्राफिक कमांड को यूज़ करते हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स एंड पैटर्न्स को यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें ईजिली कर सकते हो. यूजिंग ग्राफिक्स इन QB64. QB64 makes it very easy to draw and display different graphics on the screen. Pixels, picture elements can be used to draw lines, patterns and figures of various shapes. First, let us understand the display characteristics of our computer. There are two common modes of display: text mode and graphic mode. We use text mode to write programs and to get the required outputs. We use graphic mode for drawing figures on the screen. This can be done by using commands like screen 1, screen 2, screen 7, screen 13. The numbers written with the screen statement specify the pixels of the screen. The screen of the computer usually works on two modes. First, medium resolution. The computer screen is divided into 320 horizontal by 200 vertical pixels. Second, high resolution. The computer screen is divided into 640 horizontal by 200 vertical pixels. तो बच्चों हम बात कर लेते हैं कैसे हम ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं QB64 में. QB64 जो है वो आपको ईजी करता है क्या करने में, ड्रॉ करने में और आपको डिफरेंट ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने में. ठीक है, पिक्सल जो होते हैं उनको आप यूज़ करते हो अपनी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, पैटर्न्स एंड फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए ऑफ वेरियस शेप्स. लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है. वो दो तरह की होती है. ठीक है, एक होता है आपका टेक्स्ट मोड और दूसरा होता है ग्राफिक मोड. टेक्स्ट मोड जो होता है वो आप प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ करते हो और आप रिक्वायर्ड आउटपुट को गेट करने के लिए, उसको पाने के लिए यूज़ करते हो. ठीक है, ग्राफिक मोड जो होता है उसको आप यूज़ करते हो अपनी फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए ऑन द स्क्रीन, और ये आप काफ़ी कमांड जो होती हैं उनको यूज़ करके इसे किया जाता है. जैसे कि आपकी स्क्रीन 1 होगी, स्क्रीन 2 होगी, स्क्रीन 7 होगी, स्क्रीन 13, इस तरह से. ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उनको लिखा जाता है विद स्क्रीन स्टेटमेंट और जो स्पेसिफाई करते हैं इस पिक्सल को ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो दो मोड्स में वर्क करती है. एक होता है आपका मीडियम रेजोल्यूशन जिसमें आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना बच्चों, उसको डिवाइड किया जाता है 320 बाय 200 में. ठीक है, और आपकी सेकंड होती है हाई रेजोल्यूशन. इसमें आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में. एक होता है आपका 640 हॉरिजॉन्टल एंड आपका दूसरा होता है 200 वर्टिकल पिक्सल्स. Now screen statement. It is used for specifying the screen resolution. The syntax is screen mode parameter. Many screen modes can be used in QBasic and QB64. Each mode has specific resolution and support different number of colors. The table given below shows the different screen modes along with their resolution and also the numbers of colors that they support. Screen mode resolution, number of colors it supports: screen 1 320 into 204, screen 2 640 into 202, screen 7 320 into 216, screen 8 640 into 216, screen 9 640 into 350, 16, screen 10 640 into 352, screen 11 640 into 482, screen 12 640 into 480 16, screen 13 320 into 200 256.
You can change screen mode with higher resolution in 0864. There are two ways of using the screen mode in QB64. First way, it uses the same screen modes as in QBasic. Second way, it makes use of new image statement which enables you to set the width and height of the pixel value and the color depth of the screen. The screen mode can be defined with the use of predefined screens by applying screen new image statement. For example, screen underscore new image 640 487. Here 640 and 480 are the screen width and height respectively. 7 is the screen mode. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होती है. ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन को. ठीक है, और यहाँ पे सिंटेक्स जो होते हैं वो आपका क्या होता है, स्क्रीन मोड पैरामीटर होता है. ठीक है, काफ़ी जो स्क्रीन्स होती हैं उनकी मोड होती हैं, यूज़ की जाती है किसमें, QBasic एंड QB64 में. हर मोड जो होती है उसका एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता है और एक सपोर्ट सिस्टम होता है किसका, नंबर ऑफ कलर्स का. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको टेबल्स दी गई है जिसमें आपके स्क्रीन मोड है और आपका उसका डिफरेंट रेजोल्यूशन है और कितने नंबर ऑफ कलर्स को वो सपोर्ट करता है, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है. इनको आप चेंज भी कर सकते हैं. जो आपकी स्क्रीन होता है उसके कलर को आप चेंज भी कर सकते हो, उसकी मोड को भी आप चेंज कर सकते हो विद हायर रेजोल्यूशन. ठीक है, इसे हम दो तरीके से करते हैं. कैसे, फर्स्ट वे होता है आपका, ये यूज़ करता है आपकी सेम स्क्रीन मोड को इन एज QBasic, मतलब जैसे QBasic में किया जाता है वैसे ही इसे QB64 में किया जाता है. सेकेंड वे जो होता है ये आपकी यूज़ करता है न्यू इमेज को. ठीक है, ये उसको यूज़ करके उसकी स्टेटमेंट को और ये आपको एनेबल करता है ताकि आप उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है और जो उसकी हाइट होती है उसे आप इजीली चेंज कर पाते हो पिक्सल वैल्यू की. ठीक है, स्क्रीन मोड जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है विद द यूज़ ऑफ प्री डिफाइंड स्क्रीन. इसमें आप अप्लाई करते हो अपने स्क्रीन न्यू इमेज स्टेटमेंट को. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको उसको प्री डिफाइन करना है अपनी स्क्रीन को तो आप स्क्रीन अंडरस्कोर न्यू इमेज करके और वहाँ पे आपको उसके पिक्सल्स क्या करने होंगे, मेंशन करने होंगे. तो इस तरह से आप वहाँ पे पिक्सल अपने स्क्रीन का चेंज कर सकते हैं. नोट, except screen O, all the screen modes can be used to create graphics. Screen O can be used for text only. बच्चों यहाँ पे नोट देने वाली बात आपको बताई गई है कि O जो स्क्रीन होती है उसको छोड़ के आपकी जो सारी स्क्रीन मोड्स होती है उनको यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, जो आपकी स्क्रीन O होती है उसको आप टेक्स्ट को टाइप करने के लिए ही या उनको दर्शाने के लिए ही यूज़ करते हो. नाउ कलर स्टेटमेंट. It is not possible to select graphic mode colors by their names in QB64. The exact color number has to be specified for selecting a color. This statement sets appealing screen colors for displaying text and graphics. The syntax is color parameter F, color parameter F, parameter B. Here parameter F refers to the foreground color and parameter B refers to the background colors. There are 16 color options for background and foreground colors which are referred by the value 0 to 15. Background color chart: 0 black, 1 blue, 1 green, 3 cyan, 4 cyan, 5 magenta, 6 brown, 7 grey, 8 dark grey, 9 light blue, 10 light green, 11 light cyan, 12 light red, 13 light magenta, 14 light yellow, 15 white. Observe the example given below. CLS color 9 2. Print foreground color is background color is green, light blue and. तो बच्चों यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम कलर स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं अपने QB64 में. ठीक है, आपको हमेशा ग्राफिक जो होते हैं उनको ही सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, आप कलर्स को भी अप्लाई कर सकते हो अपने QB64 जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें. ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट कलर नंबर जो है वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आप कलर्स को क्या कर सको, सेलेक्ट कर सको. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट होती है ये सेट करती है अपीलिंग स्क्रीन कलर, किसके लिए, डिस्प्ले करने के लिए आपके टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को. तो यहाँ पे बताया गया है कि कलर्स के लिए जो सिंटेक्स यूज़ किया जाता है वो होता है आपका पैरामीटर F एंड पैरामीटर B. पैरामीटर F जो होता है वो आपका फोरग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और पैरामीटर B जो होता है वो आपके बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया जाता है. इस तरह से आपको बैकग्राउंड कलर चार्ट यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, आपको जो नंबर कलर के आगे दिया गया है उस नंबर को ही आपको स्पेसिफाई करना होगा, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में
बताया गया है. Now using draw command. The draw command draws a straight line in any direction on the screen. You can draw the by using the pointer in the middle of the screen. The line is drawn in any direction with the use of specific characters. Letter D means line is drawn in downward direction. U means upward direction. R means right and L means left. The syntax is draw direction less than length of direction greater than. Example, screen 1, CLS, color 5, draw inverted comma U80 inverted comma end. तो बच्चों हम जानेंगे अब कि कैसे हम ड्रॉ कमांड को यूज़ करते हैं. ड्रॉ कमांड जो होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी एनी डायरेक्शन में ऑन द स्क्रीन. आप ड्रॉ कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंटर, जो आपका माउस पॉइंटर होता है उसके थ्रू, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. अब यहाँ पे जो लाइंस होती है ना बच्चों, वो ड्रॉ की जाती है एनी डायरेक्शन में, लेकिन आपको वहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. जैसे कि लेटर डी हो जाता है, जो उसका मतलब होता है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी लाइन को ड्रॉ करना है. यू का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन, आर का मतलब होता है राइट एंड एल का मतलब होता है लेफ्ट. तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स जो रूल दिया होता है वो इस तरह से दिया होता है. आपको डायरेक्शन लिख करके आपको उसकी लेंथ ऑफ डायरेक्शन को मेंशन करना होता है, ठीक है, इस तरह से. नाउ ड्रॉइंग लाइंस डायगोनली. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायगोनल statements that can be used for drawing lines in different directions diagonally. The statements are: step 1, E allows the pointer to draw a line diagonally in upward direction and towards the right side. Step 2, F draws a line diagonally in the downward direction. Step 3, G draws a line diagonally in downward direction towards the left side. Step 4, H draws a line diagonally in upward direction towards the left side. Example 1, CLS, screen 2, color 4-6, draw F100 end. Example 2, CLS, screen 7, color 5-2, draw E30, F30, L60, draw R30, F50, L100, E50 end. तो बच्चों हम सीखेंगे कैसे हम अपनी लाइंस को डायगोनली ड्रॉ करते हैं, ठीक है. आपने ऊपर जाना कि कैसे हम लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, अब हम जानेंगे कैसे हम लाइन को डायगोनली ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बताया गया है. आपको सबसे पहले ई जो होता है, ई लेटर जो होता है वो आपको अलाउ करता है आपके पॉइंटर को आपकी लाइन को डायगोनली ड्रॉ करने में इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और टुवर्ड्स द राइट साइड. एफ जो लेटर होता है वो आपकी लाइन को डायगोनली ड्रॉ करने में हेल्प करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जी जो होता है, जी आपका लेटर आपको लाइन डायगोनली ड्रॉ करने में हेल्प करता है इन डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एच जो लेटर होता है वो आपको हेल्प करता है आपकी लाइन को डायगोनली ड्रॉ करने में इन अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब आप नीचे से स्लांट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, इस तरह से आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप अपनी लाइन को डायगोनली ड्रॉ कर सकते हैं. यूजिंग पीसेट कमांड. पीसेट स्टैंड्स फॉर point set. It is used to set the pixels at any particular location on the screen. It enables you to draw the figures by modifying the values of bracket x, y coordinates. In the draw command, the point from the lines are drawn is set as the center of the screen. On the other hand, pset command allows you to set the pixel values according to your needs and then draw the figure from the any point on the screen. The syntax is pset bracket xy, where x refers to the columns and y refers to the rows. Usually, the graphic screen of the computer contains 320 columns and 200 rows. Look at the following figures to understand the location of columns and rows on the screen graphically. Example 1, CLS screen 7, color 3, 15, pset 150, 60 bracket 4, draw F50, L100, E50, pset bracket 150, 122, draw H50, R100, G50 and. Second example, CLS screen 7, color 5.7, pset bracket 100, 80
bracket 14, draw E30, F30, E30, F30, P set 100 point, 130, 10, draw E30, F30, E30, F30 एंड। बच्चों अब हम जानेंगे कैसे हम पीसेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। पीसेट कमांड जो होता है वो उसका मतलब होता है आपका पॉइंट सेट, ठीक है। ये जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पिक्सल्स को सेट कर सकें एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्क्रीन। ये हमें एनेबल कराता है ताकि हम ड्रॉ कर सकें किसी फिगर को बाय मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर हम ड्रॉ कमांड को यूज़ करते हैं, जो पॉइंट होता है फ्रॉम द लाइन वो ड्रॉ किया जाता है, मतलब उसको सेट किया जाता है इस तरह से ताकि वो आपके सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ही क्या हो, स्टार्ट हो। दूसरी तरफ अगर पीसेट कमांड को हम यूज़ करते हैं तो ये आपको अलाउ करता है टू सेट द पिक्सल वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है और फिर आपको ये फिगर्स को ड्रॉ करके देता है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब इसके सिंटेक्स मतलब इसके रूल यहाँ पे दिए गए हैं। पीसेट एक्स वाई जो रेफर करता है यहाँ पे, एक्स रेफर करता है किसको, आपके कॉलम्स को, और वाई रेफर करता है आपकी रोज को। यूजुअली जो ग्राफिक स्क्रीन होती है आपके कंप्यूटर की उसमें आपके 320 कॉलम्स होते हैं एंड आपके 200 रोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन फिगर्स को देख के आप समझ जाओगे कि किस तरह से आप पीसेट कमांड को यूज़ करते हैं आपकी कॉलम एंड रोज की लोकेशन को अंडरस्टैंड करने में। नोट द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रेजोल्यूशन। बच्चों आपके स्क्रीन में जितना भी आपका अमाउंट ऑफ पिक्सल होता है वो आपका रेजोल्यूशन कहलाता है। नाउ लाइन स्टेटमेंट, इट हेल्प्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन. We should select the screen mode which supports all the 16 colors for better output. The syntax is line bracket x1 y1 bracket dash bracket x2 y2 bracket color. Here bracket x1 y1 and bracket x2 y2 refers to the starting and ending coordinates of the line which is drawn in the color that is specified. Example, program to create an isosceles triangle which has a horizontal base, screen 7, color 10, 5, CLS, print inverted comma, it is an isosceles triangle inverted comma, line bracket 160, 30, bracket dash bracket 250, 180 bracket 4, line bracket 250, 180 bracket dash bracket 70, 180 bracket 2, line bracket 70, 180 bracket dash bracket 160, 30 bracket 1 end. तो बच्चों हम जानेंगे कैसे लाइन स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं QB64 में। ये आपको हेल्प करता है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में, लेकिन ये दो पॉइंट के बीच में आपको हेल्प करता है, मतलब आपको एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन मोड को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है जो कि सपोर्ट करता है आपके 16 कलर्स को, ताकि आपको बेटर आउटपुट मिल सके। अब इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो रूल है वो यहाँ पे दिया गया है। आपको इस तरह से लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको x1 y2 मतलब 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, और 2 पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है पहले वो लिखोगे, उसके बाद आपके एंड पॉइंट लिखोगे, तभी आप उन दोनों पॉइंट्स तक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया कि अगर आपको किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्रिएट करना है जिसकी हॉरिजॉन्टल बेस है तो आपको इस तरह से वहाँ पे सिंटेक्स लिखने पड़ेंगे। सर्कल स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग अ सर्कल, ellipse or an arc of the circle. The syntax is circle x, y are P. The coordinates x and y refer to the center of the circle on the screen. R refers to the radius of the circle and P refers to the color code. Example, screen 7, color 14, 5, CLS, print inverted comma, a circle inverted comma, circle bracket 160, 100 ब्रैकेट 50, 15 एंड। तो बच्चों हम जान लेते हैं सर्कल स्टेटमेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, या फिर अगर हमें कोई आर्क को ड्रॉ करना पड़ता है किसी सर्कल के तो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसके सिंटेक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं कि आपको कैसे इसको कमांड देनी होती है। आपको सबसे पहले लिखना होता है सर्कल, फिर आपको एक्स वाई एंड आपको लिखना होता है उसके साथ RP। x जो है और y जो है वो रेफर करता है आपके सेंटर ऑफ द सर्कल को ऑन द स्क्रीन।
R रेफर करता है आपके रेडियस को और P जो है वो रेफर करता है कलर कोड को। इस तरह से आप अपने स्क्रीन पे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कमांड देते हैं। नाउ पेंट स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कलर ऑफ योर चॉइस. It determines the coordinates from where the figure will start and also fills the color within the area of the figure. Paint bracket XY color border color. Example CLS screen 7 color 3 circle bracket 100 100 bracket 40 paint bracket 100 100 bracket color 5 circle bracket 201 100 bracket 50 पेंट ब्रैकेट 201 100 ब्रैकेट एंड। तो बच्चों पेंट स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने के लिए, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो फिगर है वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है फ्रॉम वेयर द फिगर स्टार्ट, ठीक है। और ऑल्सो उसमें हम कलर भी फिल करते हैं, मतलब वो जो फिगर का विद इन अंदर का एरिया होता है उसमें हम इसके थ्रू कलर फिल करते हैं। अब इसके लिए आपको कमांड देनी पड़ती है, सबसे पहले पेंट, उसके बाद आप XY लिखते हो, उसके बाद आप कलर को मेंशन करते हो और बॉर्डर कलर को भी मेंशन करते हो। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी यूज ग्राफिक मोड फॉर ड्राइंग फिगर्स ऑन द स्क्रीन. द स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द स्क्रीन रेजोल्यूशन. QB64 programs cannot only display text and alphanumeric output, but they can also display colorful figures and graphics. Pixels, picture elements are used to draw lines, patterns and figures of various shapes. There are two common modes of display, text mode and graphic mode. We use text mode to write programs and to get the required output. The draw command draws a straight line in any direction on the screen. Pset command is used to set the pixels at any particular location on the screen. The line statement helps to draw a straight line between 2 points on the screen. So students, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.